My guest today is someone who has worked his way up in the industry the way real people do. Not with fanfare, but just by showing up. Every day, every year, for the past 5 decades. From bit roles to 2 lines to 10 lines, he became that familiar, trustworthy presence holding scenes together without demanding that spotlight. In the 90s, he would be everything, everywhere. The taxi driver, the inspector, the politician, the producer, featuring in every second film. This industry celebrates glamour, but my guest today reminds you where the real heroism lies. In consistency, in humility, in the dignity of a working man who chose reliability over romance. There's a simple truth about him. He stayed the course. And perhaps that is why he feels extraordinary today. Because he had the audacity and the capacity to be ordinary. So welcome to the Pooja Bhatt show, Avtar Gill. Thank you very much, Pooja, for your kind words. I'm overwhelmed and it's very touching. Thank you so much, sweetheart. पहला सीन जो हमने एक साथ किया था. जी, In Daddy, I was all of 17. Yes. And I come into your office. Yes. And you are very angry क्योंकि आपके पिताजी का जो फोटो है दीवार पे, Yes. किसी ने उस पर हार नहीं डाला है. That's right. And I have come to ask you for a second chance for my father. That's And आप right. बोलते हैं कि मैं बहुत ही मामूली इंसान हूं, मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है. That's right. I cannot give your father an opportunity and he's over. And then I tell you, मगर सर, आप अपने पिताजी से इतना प्यार करते हैं कि कोई हार नहीं डालता है और आपका दिल जो है टूट जाता है. मेरे पिताजी जिंदा हैं. वो अब तक एक फोटो नहीं बने हैं ऑन द वॉल एंड यू मेल्ट. Yes. तो निकलते हुए मैं कहती हूँ कि आपकी अपने बारे में राय गलत है. That's right. आप मामूली इंसान नहीं हो. वो लाइन भट्ट साहब ने आपके लिए ही लिखा है. यू आर एनीथिंग बट ऑर्डिनरी. यू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. आज के लोग जो इतनी तकलीफ से डर जाते हैं, वो 1 घंटा अवतार गिल के साथ बिताए, शायद हौसला बढ़ जाएगा. वो कहते हैं कि हीरे की कदर जौहरी करता है. So the credit goes to either you or your dad, my friend महेश भट्ट, जिन्होंने मेरे बारे में ये सोचा या ये राय कायम की. मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, हम्बलनेस नहीं है कि मैं तब भी ऑर्डिनरी था, अब भी ऑर्डिनरी हूँ. I've come from a middle class family and my father was a truck driver and I'm very proud of him. मैं समझता हूँ हर आदमी का पहला हीरो उसका बाप होता है. बट मुझे लगता है कि मेरा बाप तो बहुत ही ग्रेट था. Because he never complained that I'm tired. He has never told me I'm doing favor to you. अच्छी से अच्छी एजुकेशन, हर चीज दी. हमने स्ट्रगल जरूर किया बट आई कांट से कि मैं फुटपाथ पे सोया, मेरे पास कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था. He gave us food, shelter, clothes, everything. He was a great man. I miss him even today. Coming from that ordinary background, I feel that I'm still ordinary and I'm same. Again, credit goes to your dad because of his company. Learning from him. और अब भी सीख रहा हूँ. मैंने एक दिन उनको कहा, I said, you are lucky you met UG. I'm lucky you met me. You are my UG. Yes. I would have become alcoholic maybe. Criticizing people, bitter all the time. In 19s when I had no work, I used to meet him every day, tense, worried, newly married, पैसा नहीं, काम नहीं. There are very few people who calls me Tari. He said, Tari, तुम्हारे अंदर बहुत कड़वाहट है, जहर भरा है. अंदर से साफ करो अपने आप को. अपने से नजर हटा के दूसरों को देखो. कमाल का सेंटेंस बोला. He said, when you come to meet me, before meeting me, एक आदमी की तारीफ करके आना. या तो उसके काम की तारीफ करना, या उसके शर्ट की तारीफ करना, या उसकी शक्ल की तारीफ करना. बट कुछ ना कुछ अच्छा हर आदमी में होता है. Just praise him, then come to meet me. Without that, you don't come. And slowly, I could see the goodness in people. And I started calling them, praising them, their work, their looks. So he's like a friend, elder brother, philosopher, guide. If you write a book on me,
75% will be about me and Mahesh Bhatt. I remember those days. There was not a single issue of Stardust without mentioning me and Mahesh Bhatt. They wrote Mahesh Bhatt third wife. अब ये मीम्स तो अभी बनने शुरू हुए हैं जी, तो वो तब बनाते थे। तो उनकी कोई लड़की थी वो, आई डोंट रिमेम्बर, जर्नलिस्ट। आई सेड यू कांट टेक आउट वन इश्यू ऑफ स्टारडस्ट विदाउट मेंशनिंग माय नेम। आई एम दैट बिग, व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? शी हैड नो आंसर। There was a perception that I do the casting of Mahesh Bhatt's film. So they attributed me that power which I never had. और उसमें महेश भट्ट को मजा आता था। He was shooting for Gumrah in Mehboob with Sridevi, gutter का scene. I was sitting with him and this is told by Ashish Vidyarthi himself. Okay. When we were shooting together. He said, अवतार जी आपको याद है मैं पहली बार आपसे कब मिला? मैं बोला नहीं। He said, आप भट्ट साहब के साथ बैठे हुए थे महबूब में, गुमराह की शूटिंग चल रही थी। मैं नया नया आया था काम मांगने के लिए। मैंने कहा भट्ट साहब मैं NSD से हूँ, मुझे काम करना है, ये करना है। तो यू नो भट्ट साहब व्हाट ही सेड, अगर अवतार गिल बोलेगा तो तुमको काम दे दूंगा। He said, मुझे आग लग गई कि मेरा कैरियर अवतार गिल डिसाइड करेगा बनना है कि नहीं बनना। I said, आशीष यार तुम क्या बात कर रहे हो? He said, how can I forget you? I said, महेश भट्ट को मजा आता था, मुझे बोलता तू बाहर निकलेगा तेरे को कोई चाकू मार देगा देखने में। लोग इतना ढूंढ रहे हैं। लोग बहुत जलते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि ये रिश्ता है क्या। मैं रॉबिन भट्ट को जानता था। रॉबिन भट्ट के साथ मैं, क्योंकि डैडी के साथ मैंने गुजराती फिल्म में काम किया था, तो मुझे नहीं पता था काम इतनी इजीली मिलता है। तो रॉबिन मुझे ले गया, बोला डैडी मेरा दोस्त है अवतार गिल, इसको पिक्चर में काम करना है। तो बोले करो, किसने मना किया? मैं बोला आपकी पिक्चर में, मेरी पिक्चर में करो। सो आई गॉट द रोल इन दैट पिक्चर। तो मैं बोला यार महेश को मिला देना यार। Daddy meaning my grandfather, Nana Yes, Bhatt. Nana Bhai Bhatt. Wow, I worked with him. You worked with my grandfather also? Yes. The film's name was Gajra Maru. Wow. Kiran Kumar's wife was heroine. So you worked with my grandfather before Yes. you worked with my father? Yes. Wow. And we shot in Gujarat, Rajpipla. And Acha. Amjad Khan was the main villain. He did free that picture. He shot morning 10 to up to 2 o'clock, came in his Mercedes, did 9 scenes as a main villain. My God. In one day. And he said, Daddy, हवे हूँ जाऊँ? हाँ बेटा जा 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 जा। So then I said, Robin मुझे मिला दे यार। तो भट्ट साहब was shooting at Satish Valla's bungalow for a film called Zamin. हेमा जी, राज बब्बर, कबीर बेदी, अच्छा महेश यहाँ शूटिंग करो तेरे को मिलाता हूँ। जैसे हाँ मुझे नहीं मिलना यार, वो पहचानता नहीं है मेरे को। तो रॉबिन उतर के मैं आया, ये सब बाहर बैठे थे, हेमा जी वगैरह सब। बोला महेश मैं इसको लेके आया। मैं बोला महेश को मिलाता हूँ, तो बोलता है मेरे को नहीं मिलना है, वो पहचानता नहीं। इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो मेरी तो जान निकल गई सर। अरे आओ आओ, हमको तुम्हारी ये अदा पसंद है, आओ हम तुमको काम देंगे। दिस वॉज हिज रिस्पॉन्स। तो मैं आके ऐसा बैठा, हेमा जी भी देख रही, ये क्या इंट्रोडक्शन का तरीका है यार रॉबिन भट्ट का। देन आई स्टार्टेड कमिंग टू योर प्लेस। आई स्टिल रिमेम्बर, तुम लाल नाइट सूट में पहने, सुबह सुबह तुम छोटी बच्ची। कहाँ? पाली हिल, ग्रीन एक्र्स? पाली हिल में, ग्रीन एक्र्स। अच्छा। वहां में आया। देन ही गॉट द फिल्म कॉल्ड ठिकाना। तुमको मैं इसमें मेन विलन का रोल देता हूँ, ठीक है। पिक्चर की शूटिंग हो रही है। शूटिंग होते होते 1 साल हो गया, मेरी शूटिंग ही नहीं हुई। 2 साल हो गए, मेरी शूटिंग ही नहीं हुई। 3 साल हो गए, शूटिंग ही नहीं हुई। क्या मेन विलन? कुछ 4 साल हो गए। फिर को बोला अभी सब काम हो गया, खाली तेरा काम बाकी है। देन ही डिड दैट शूटिंग। हाँ, एंड दैट वाज द फर्स्ट पिक्चर। उसको ओपनिंग लगी मिनरवा में फ्राइडे को, बहुत अच्छी। हम लोग सब दारू पी के टाइट, अरे कमाल हो गया कमाल हो गया, अरे यार ये वो है। फ्राइडे मिनरवा फुल। संडे के बाद पिक्चर ही नहीं उतर गई। पता ही नहीं, इतना वाला आसमान से नीचे गिरा एकदम। अवतार गिल स्टार बन गया, सोच रहा था। कुछ नहीं। मैं हेमा जी की पिक्चर कर रहा था, आवारगी। आई वॉज ए मेन विलन इन दैट। और मुझे मेरे घर पे टेलीफोन नहीं था, नेबर में फोन आता था भट्ट साहब का। अरे मुबारक हो। मैं बोला क्या भट्ट साहब? बोले हेमा जी ने कल रशेज देखे। बोले लुंगी वाले का रोल बड़ा हुआ आता है तो टेंशन होता है स्क्रीन पर। सिल्क लुंगी कुर्ते में था। तो भैया प्रोड्यूसर तो बहुत खुश है, हेमा जी बड़ी तारीफ कर रही है, तो हम भी खुश हो गए। मैंने कहा तुम्हारा दिन बना दूं। ठिकाना नहीं चली। एक दिन फोन आया, क्या कर रहा तू? ऐसे कुछ नहीं, घर आ जा। घर आ गया
तो मारुति 800 गाड़ी थी, उसमें बैठे हैं, घूम रहे हैं। बोला क्या बात है, बुलाया था? बताता हूँ। कैसे बोले वो आदमी कि एमा जी ने बोला विलन को रिप्लेस करो। Oh God. देन ही टोल्ड मी, ही सेड, शी टोल्ड मी कि भाई इसको रिप्लेस करो, बट मैं तुमको निकालूंगा नहीं, तुमको इंटरवल तक रखूंगा, इंटरवल के बाद मैं परेश रावल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं रोया बच्चे की तरह, चुप करवाया। तो बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला, इसे स्टार्स की तारीफ से या बुराई से दुखी नहीं होना चाहिए, इनकी राय फ्राइडे टू फ्राइडे चेंज होती रहती है। सही बात है। इफ दे प्रेज यू डोंट गो मैड, Correct. इफ दे क्रिटिसाइज यू डोंट वरी, Don't take it personally. डोंट टेक इट पर्सनली। सो ऐसे बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, वो जो लाइफ में काम दिया, पैसे दिए, इज्जत दिया, प्यार दिया। एक सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लाइफ में मिली है ना, करेज टू फेस लाइफ, बिकॉज ही वॉज द ओनली मैन इन माई लाइफ who said don't worry I am there. You need one person in life to say don't worry I am there. That is true. मैं फोन करता था, मैं व्हाट्सएप बहुत परेशान हूँ, सेंटोर में आजा 100 रुपए वाली कॉफी पिलाता हूँ तुझे। आता था किसी तरह से बिठा के, इसे तेरी बैटरी चार्ज करता हूँ। इसने जो बच्चों की तरह उंगली पकड़ के चलना सिखाते ना, दैट इज हाउ ही वॉकड विद मी टिल टुडे, ही इज देयर, एंड देन आई सी के भाई हाउ लकी आई एम। He loves you and he respects you so much. ये बहुत लोगों को सुन के तकलीफ होगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर वो मुझे बोलेगा ना इस बिल्डिंग से जंप मार दे नीचे, आई विल नॉट आस्क हिम व्हाई। ये दोस्ती है, ये रिलेशनशिप है, ये रिस्पेक्ट है, ये एक अनकंडीशनल है। ये रिश्ता ना फिल्मों से शुरू हुआ था, मगर ये फिल्मी रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। हमने तय किया था कि हम जब भी मिलेंगे हम फिल्मों की बात नहीं करेंगे, हम फिल्मों की बात नहीं करते। ये तो फिल्म वालों का प्रॉब्लम है, उसके सिवा कुछ आता ही नहीं है, उनको मिलते ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है। हमने कभी फिल्म के बारे में बात ही नहीं की। और हम ये नहीं कि हम रोज मिलते हैं या रोज बात करते हैं, हमको एक दूसरे को जताना भी नहीं पड़ता कि तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ। जी। मुझे पता है कि अगर मैं फोन करूंगा तो ये आदमी फोन उठाएगा ही उठाएगा उसी वक्त। डेफिनेटली। तो ये है, क्यों है इसकी वजह नहीं पता। हाँ, ये क्यों बन गया, कैसे बन गया, प्यार कहो, दोस्ती कहो, रिस्पेक्ट कहो, या ये सारी बातें कहो, इससे लोगों को तब भी तकलीफ थी, अब भी तकलीफ है, कल भी तकलीफ होगी। और आई एम नॉट सरप्राइज अगर लोग कहें पूजा तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाप की तारीफ कर रहा था, चमचागिरी कर, टू हेल वो विद आपकी यू, फितरत में नहीं है चमचागिरी टू करना। हेल विद यू। No. जो फील करता हूँ वो मैं बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी खासियत है। मैं तुमसे चवन्नी नहीं मांग रहा हूँ। करेक्ट। आई डोंट ओ यू एनीथिंग। वरुण ग्रोवर है, बहुत ही मशहूर लेखक, स्टैंड जानता अप हूँ मैं, कॉमेडियन, जानता हूँ। बहुत अच्छे इंसान। जानता हूँ। उसके ट्विटर के बायो में लिखा है कि ऑल द वर्ल्ड्स a Mahesh Bhatt film and we are all but Avatar Gill in it. I just love that. He met me recently. हाँ। मैं से अवतार जी एक तस्वीर ले लूं आपके साथ। मैंने कहा हाँ। इसे आपको मजे की बात बताऊं, मैंने कहा बम्बई में आप पहले एक्टर हैं जिसको मैंने देखा। अच्छा। हाँ, ऐसा मतलब इस मैसूर एसोसिएशन में आपका शो था, ताजमहल का टेंडर, और मैं शो देखने आया था, तो लिफ्ट में घुसा तो लिफ्ट में आप थे। लाइक दिस, अरे ये तो एक्टर है। तो मैंने कहा यार तुमने तो ये लिखा हुआ, बोले हाँ 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 मैंने लिखा हुआ है। वो यू वेरी गुड इन कब्जा। उसके बाद में आप टाइप कास्ट हो गए। टाइप कास्ट होने का फायदा होता है, आपको काम मिलता रहता है जी। और मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं चूज करूं। बैगर्स कांट बी चूजर्स। मैं कुछ 40-50 फिल्में की होंगी वर्दी में, कमिश्नर, असिस्टेंट, गुड मैन, बैड मैन, फलाना। और मैं बोलता था अगर इंस्पेक्टर का रोल है मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मुझे दे दो। आशिकी जी। और वो आइकॉनिक पोस्टर अनु अग्रवाल एंड राहुल रॉय अंडर द कोट। करेक्ट। इट वाज अ मार्केटिंग मार्वल। भट्ट साहब ने मुझे कहा था कि वो फिल्म में वो नहीं डालने वाले थे, इट वाज ओनली अ पोस्टर। जी। एंड इट इज बिकॉज ऑफ यू जी दैट इट इज इन द फिल्म। एक्चुअली पूजा वो पोस्टर शुरू में देख के ही पिक्चर को प्लान किया था, तो शूटिंग शुरू हो गई, फिल्म बन गई, खत्म हो गई। लास्ट डे वी वर शूटिंग एट एयरपोर्ट। जी। मैं बोला यार एक बात सुनो, तुम ये पोस्टर हैमर कर रहे हो आशिकी आशिकी,
ये तो फिल्म में है ही नहीं कहीं, तो लोगों को लगेगा कि चीट किया आपने, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। हाँ यार, ये तो कभी ध्यान ही नहीं गया इस बात पे, इसको अभी डालते हैं, यहाँ डालते हैं। मैं बोला हाँ एंड में डाल, ये सारा एंड वाला होना चाहिए सीन, इसमें एंड आएगा तो ये लेके जाएंगे लोग साथ में। करेक्ट, यू हैड दिस इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स। बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं लोग मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, मगर ये बेसिक जो विजडम है, वेयर डज दैट कम फ्रॉम? हम दोनों ना बिना बोले एक दूसरे के दिल की बात समझ में आ जाती है। मतलब बहुत बार हुआ है कि तू ये सोच रहा था ना, मैं बोला हाँ तुमको कैसे मालूम? एक दूसरे के दिल की बात हमको समझ में आती है कि तुम ये बोलना चाह रहे हो क्या, मैं तुमको बताता हूँ। फिर तेरी कहानी याद आई जी, वो कैसे बनी, तुमको पता है कि नहीं? नो, टेल मी। मेरी वैन में हम लोग गए यहाँ से हॉलिडे इन में, वहाँ आ रहे थे अमीन सयानी रेडियो प्रोग्राम डिस्कस करने सड़क का, और जैसे ही हम हॉलिडे इन के अंदर घुसे तो वी सॉ परवीन भाभी। ओह यस, आई रिमेंबर। आप थे साथ में, भट्ट साहब के साथ में? तो ऐसा व्हाट्सएप परवीन बुक शॉप में घुस गए बिना काम के। करेक्ट। हम ऐसे देख रहे थे, वो पीछे हमारे घुस गई, एक्सक्यूज मी ऐसे बोल के उसने पूछा सम इंटीरियर डेकोरेशन बुक, तो उसने दी, उसने ऐसे वैसे देखी करके हम लोग निकल गए। अमीन सयानी आए, अमीन सयानी के साथ बैठ सड़क का उन्होंने डिस्कस किया रेडियो प्रोग्राम। 1 मिनट में एक कहानी सुनाता हूँ, अच्छी लगेगी तो हाँ बोलना, खराब लगेगी तो ना बोलना। ऐसा पूजा का ये कैरेक्टर है, ऐसा राहुल का ये कैरेक्टर है, ये है, इसको टीवी के लिए बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? मैंने कहा फौरन बनाना चाहिए अभी का अभी। भट्ट साहब के सारे काम इंस्टेंट ऐसे हुए, और मुझे लगता है एक्टर से काम लेने के लिए इससे बेटर डायरेक्टर नहीं है। आप चाहे संजय दत्त देख लो, कुमार गौरव देख लो, पूजा भट्ट देख लो, जैकी श्रॉफ देख लो, ये आदमी जो एक्टर को हैंडल करता है ना, और मैं तो कहता हूँ इवन कॉमेडी आप उसको देख के इमिटेट कर लो ना तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। मैं तो उसको बोलता हूँ यू आर ए कॉमेडियन। लोगों का इंप्रेशन है कि महेश भट्ट इज अ वेरी सीरियस मैन, बट ही इज अ वेरी फनी मैन। ही इज अ फनी मैन, एंड दैट इज अ साइड टू हिम दैट यू नो, पीपल हु आर क्लोज टू हिम नो दैट ही इज वेरी फनी। ही इज अ फनी मैन। और वो हंसता तो इतना हंसता, मैं बोला तुम मेरे को मिलके क्यों हंसते रहते हो यार, जब देखो हंसते रहते हो, मैं क्या फनी बात कर रहा हूँ? तो वो बोला श्रीता सुन क्या बोल रहा है। You just did her film, Tu Meri Puri Kahani. Yeah. And you used to come to the set absolutely prepared. The youngsters would forget their dialogue, but Avtar Gill would not forget his lines. But where does it come from, this discipline after so many years? I think, Pooja, this is from the theatre. IPTA and... IPTA. That is the bread and butter, यार. The day I will not do that, they will not call me, they'll throw me out. उसको लाइनें याद नहीं होती. I'm not doing favor to anybody. This is my job that I'm doing for myself, so that you call me next time also. Correct. I saw an interview of yours which you had given, I think in 2021. I know you very well, but somebody else who was watching it with me said कि, I said, but he's not feeling sorry for himself. आप अपील कर रहे थे to the new filmmaker. Yeah. Hello. Yeah. My name is Avtar Gill. Yeah. And my faculties are intact. Why should I feel sorry? यही मैं पहले बोलता था, अभी आज जरूरत है तो मैं फिर बोलता हूँ। उसमें ईगो कहाँ से आ गई? You are somebody who will keep working until you drop dead, right? There's no question of retirement. No, I don't believe in a word called retire. Because this is my holiday when I'm working. This is my enjoyment. Bilkul. You feel alive when you're working. As long as I'm going out to work and getting money, whether it is a short film, ad film, documentary film, feature film, any language film, play, event, I want to work, I want to get money home. तो बेसिकली आप मजदूर हैं दिल में. Exactly. और ये मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों को बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है हमारा इंडस्ट्री, बट यू हैव टू हैव द हार्ट ऑफ अ लेबरर. क्या है, बहुत चीजें मैंने सीखी भट्ट साहब से. इससे ग्रेटनेस का बोझ लेके मत बढ़ो, बैक पेन करती है. वो ग्रेटनेस लेके चलते हैं, रूम में आके देखते हैं इधर उधर. ही इज डन ए फेवर, कैमरे पे फेवर, बिल्कुल, अर्थ के ऊपर फेवर, बिल्कुल, जहाँ खड़े हैं तुमको बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा फेवर कर रहा हूँ. तो वो मेरे को बहुत सारी बातें ऐसे धीरे धीरे समझा देते. सेट पे जाओ ना, यूज्ड टू अनाउंस, तारी तेरे को एक्टिंग नहीं आती, मेरे को डायरेक्शन नहीं आती, चलो आप काम करें. और लोग क्यों ना दुश्मन बने. पूजा मैं तुमको बताऊं, फिर भट्ट साहब स्टेज, उसके नीचे एक बंगलो था क्रिएडो करके, वो शूटिंग फॉर नाम.
नूतन जी, बंटी, संजू, तो कैसे ये आदमी न्यू कमर को या छोटे एक्टर को रिलैक्स करता। अरे मेरा दोस्त आ गया, कुर्सी लाओ, चाय लाओ, एंड आई एम लाइक ओह शिट यार, एंड ही से इधर ला कुर्सी बैठा यार, हाथ जाओ। अच्छा तुम क्यों अनाउंस करते, ये सब क्या करते हो यार तुम? इस इनके बाप की जागीर है क्या, सिर्फ यही एक्टिंग करेंगे? सही बात है। सुनो, तुम्हारा सीन है, अच्छा करना, इनके बाप का राज नहीं है, सिर्फ ये अच्छी एक्टिंग, इवन यू कैन डू इट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्टर के लिए इज द बेस्ट, खास करके न्यू कमर और स्ट्रगलर, ही विल मेक यू रिलैक्स, Yeah, that is a fact. ही विल नेवर से कि तुम भूल गए, ही सेज तूने बहुत अच्छा किया, अभी एक और ट्राई करते हैं, हाँ. एंड प्लीज डोंट इम्प्रेस मी, Give me a bad shot. He's told me very often. आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड, दैट्स व्हाई आई कास्टेड यू। तो ये बातें कहाँ सुनने को मिलती हैं? मुझे याद है जब संजू मुझे मिला था दिल्ली में, when he initiated the conversation with me, कि पूजा सड़क 2 क्यों नहीं बनाते हैं? Yeah. तो मैंने बोला मेरा ब्रांड तो है नहीं, आप मुकेश भट्ट से बात कर लो। Yeah. He said नहीं, मैं नहीं बात करूंगा, आप ही बात कर पाएंगे। Yeah. Can I initiated that and भट्ट साहब said क्यों करना है उसको? हाँ। What he told me was वो माहौल जो था ना हमारे वो सेट miss पे, करता हूँ। वो मिस कर रहा हूँ। मेरे को बोला उसने, he told me also. संजू ने कहा हाँ। कि वो जैसे हम फिल्म बनाते थे, शॉट तो होता था मगर शॉट के बीच में जो हमारे बातें होती थी, what we would share, तो that would seep into the work. Yes. वो अंदर जब तक नहीं उतरे ना, वो याद किया उन्हें। अभी मैंने उसको फोटो भेजी एक नाम की, तो उसका मैसेज आया, अरे ब्रदर दोज डेज यार। And we were most upset कि अवतार गिल को हमने पार्ट 1 में मार क्यों दिया? We can't have him in part 2. एक आदमी ने सोशल मीडिया पे लिखा, आई कुडंट एंजॉय द फिल्म बिकॉज आई वाज वेटिंग ओनली फॉर अवतार गिल। Yeah, because you were his compulsory blind. Yes. मुझे पता है कितने लोगों ने क्या क्या किया पूजा, क्या क्या किया, मतलब यार तुम्हारी पिक्चर सेम लगती है यार, इट लुक्स लाइक सीरियल, ये लकी नहीं है, थोड़ा पनौती है, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, ये लकी नहीं है। हाँ तो बट सब मेरे को वो चाहिए, नहीं चलेगा। यूज्ड टू से। तो ये सारी बातें जो है ना, अब ऐसे लोग पैदा नहीं होते जो दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं। जी उनके यहाँ पे दिल था, यहाँ से। इमेजिन ही शूटिंग एट बैलेट पियर एंड ही इज कॉलिंग मी, मेरी यहाँ शूटिंग है, आजा। हाँ मुझे याद है आप आते थे। एंड फ्रॉम चेंबूर आई गो टू बैलेट पियर। करेक्ट। कौन बुलाता है और कौन जाता है? नोबडी कॉल्स एंड नोबडी गोज। दैट्स ट्रू। Ever since I was a little girl, I noticed कि भट्ट साहब के दोस्त नहीं थे, बहुत सारे acquaintances थे। Yeah, correct. But you and UG, constant in his life. सी पूजा, मतलब जो होता है ना, सेल्फिशनेस, जब वो बीच में आ जाती है ना, मतलब कोई भी हो, भले मैं मतलब से शुरू हुई थी कि मुझे फिल्मों में काम चाहिए, और वो कहीं बैकग्राउंड में पीछे बहुत साल पहले, 20-25 साल पीछे छूट गया। उनको कुछ नजर आया, मुझे तो खैर इस रिश्ते में मिला ही मिला है, मैंने तो क्या दूंगा उनको। और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, रोड पे चौक पे खड़ा होके बोल रहा हूँ, भैया हाँ मुझे बहुत कुछ मिला है। एक आदमी बोलता तू फिक्र नहीं करना, मैं हूँ, आधी रात को 2 लाख 4 लाख रुपया चाहिए हो ना, मुझे फोन करना। ये कब बोला था? 90s में जी। और मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कभी उनको नहीं कहा। उन्होंने मुझे वो कहा था, he has never asked me for a dime। क्या यार, वो ठीक है यार, और कब तक आदमी मांगता भी रहेगा? ये वैसे ही सब कुछ मिल गया बिना मांगे और इज्जत के साथ मिला। He says अवतार गिल से सीखो। He gets up and he goes to work every day। अभी रामलीला कर रहा है वो, तो वो भी आप कर रहे हैं 10 साल से? बिल्कुल कर रहा हूँ। मगर वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ऐसा, वो आप रिहर्स करते हैं कि कैसे होता है? बिल्कुल रेस नहीं करते, डायरेक्ट स्टेज पे जाते हैं। हाँ, वो आपके कान में फीडबैक लगाया जाता है। वहाँ एक आदमी जो है वो माइक पे आपके डायलॉग बोलता है, आपको सुनने हैं, सुन के वो रिपीट करने हैं, फिर वो दूसरे के बोलता है, फिर वो सुनेगा, फिर वो रिपीट करेगा। दैट इज हाउ इट गोज। ओह माय गॉड। या बट रामायण जो है या राम है, that is religion, that is everything. जी. They telecast in about 22 countries, about 25 crore people watch. My God. Every year. I've done Ravan, I've done Vibhishan, I've done Dashrath, I've done Janak, wow. I've done Parshuram, I've done Khardushan. बस खाली सीता बाकी रह गई। बाकी सारे कर लिए मैंने,
फिर मैंने आपको एक टेलीविजन चैनल में देखा था कि आप पूरे कॉस्ट्यूम में थे वहां पे, मतलब आई वॉज प्लेइंग रावण। तो उन्होंने मुझे जितने भी चैनल दिल्ली के थे वहां वो मुझे लेके गए थे स्पेशली रावण के ड्रेस में, कॉस्ट्यूम में। या इमेजिन मैं कार में बैठ के जा रहा हूँ, कार में बैठ के आ रहा हूँ। ओह माय गॉड। क्या प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं। हाँ, रोजी रोटी है, करेक्ट। काम तो वही कर रहे हैं ना, स्टेज पे करें, टीवी पे करें, रामलीला में करें, जी। और उसके अलावा कुछ आता भी नहीं है, और हमको कोई नौकरी भी नहीं देगा अब तो इस उम्र में। आपको ये बात रजा मुराद साहब ने कहा था क्या? कि यू मस्ट डू ऑल वर्क। यस, यू वर वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम या, एंड ही टोल्ड यू दैट डोंट से नो टू एनी वर्क। रजा और मैं, हम लोग मिले थे, जेपी की फर्स्ट पिक्चर बन रही थी सरहद, जी। 79 में। मैं नया नया कॉलेज से निकल के आया था। उसमें विनोद खन्ना थे, नवीन निश्चल थे, बिंदिया गोस्वामी थी, प्राण साहब, मिठुन चक्रवर्ती न्यू। रजा मुराद मोर पॉपुलर देन मिठुन बिकॉज ही वॉज ए हीरो इन पंजाबी फिल्म्स। वहाँ हमारी दोस्ती हुई और 79 से लेके अब तक है। तो हमको गलत फहमी थी कि मैं बहुत ग्रेट एक्टर हूँ, ये रोल नहीं करूंगा, वो रोल नहीं करूंगा, इतने पैसे में नहीं करूंगा, उतने पैसे भी। अरे यार, तुम पहले काम तो करो, पता तो लगे तुम कौन हो। तो ये जो काम आता है तो काम को ना मत बोलो। अभी भी मुझे घर वाले समझाते रहते हैं, तो अकड़ जाते हो, मना कर देते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ, यार कम पैसे देते हो, मुझे डायलॉग याद नहीं होते। इतने पैसे में इतना ही काम होगा। This was said by me. Really? ये हाँ, आपका लाइन है? yeah. तो ये भट्ट साहब ने अपना लाइन बना दिया है और हाँ. हमने सबने इस्तेमाल किया है इस लाइन को। No, this is my line. People who say कि Avatar Gill copies Mahesh Bhatt, maybe it's the other way around. No, it is. महेश भट्ट भी करता है, लेकिन ये मेरी लाइन है, ये मैंने नुक्कड़ के सेट पे बोलता होता था। देखो एनीबॉडी विल से ना वन मोर, अरे भैया इतने पैसे में इतना ही होगा। इससे ये लाइन मेरी है, क्लासिक लाइन है। हाँ, क्लासिक लाइन है। हाँ। जैसे मैं ऋषिदा के साथ सीरियल कर रहा था, तो मैं बोलता था, ऋषिदा एक और कर ले, एक ही बार दिखाएगा बेटा ये। ऋषिदा बोलते थे क्लासिक। हाँ, कुछ किसी ने बोल दिया ना, खास करके स्टार को डांट देते थे। ओनली डायरेक्टर आई हैव सीन जिसके सामने कोई नहीं बोलता था, कोई भी एक्टर। वन मोर, व्हाई वन मोर? हाँ, दिस इज डायरेक्टर्स प्रिविलेज टू आस्क वन मोर। करेक्ट। हु विल पे फॉर दिस रॉ स्टॉक? तो उसका एक्टर का मुंह छोटा हो जाए सबके सामने, माइक पे। ओके, वन मोर लिया, कट इट, प्रिंट ओनली फर्स्ट। मिथुन दा ने मुझे ये सिखाया था जब हम नाराज के लिए शूटिंग कर रहे थे, याद है? मलेशिया गए थे हम सब। हाँ. सड़क पे हम शूटिंग कर रहे थे। यू नो माय फादर, उसको क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, तो ही स्टार्ट्स गेटिंग वेरी एजिटेटेड। अभी भी नहीं है। तो एक टेक, दो टेक, भट्ट साहब से ओके फाइन, ओके लेट्स गो, और मैं रुक गई। तो मिथुन दा सेड पूछ, ही कॉल्ड मी पूछ, क्या हो गया पूछ? तो आई सेड नहीं मिथुन दा, इट वाज नॉट अ गुड शॉट। इन द मिडल ऑफ द रोड ही जस्ट सेड, ए ये आमिर खान का भूत तुम्हारे अंदर से निकालो, क्या स्टॉक घर से ला रही हो? एंड आई विल नेवर फॉरगेट दोस वर्ड्स। अब ये जितने थिएटर वाले हैं ना, ये फर्स्ट टेक सेकंड टेक में ही बेस्ट करते हैं। इफ यू टेक रीटेक, स्पॉन्टेनिटी गोज अवे, नहीं होता वो। मगर वो फिल्म का वैल्यू, यस, वी ऑल न्यू इट। या, वी हैव सीन। यस, लोड होता, फिनिश। हाँ, 4 मिनट में 400 फीट, एब्सोल्युटली 1200 रुपए का गया। सही बात है। हाँ। डिजिटल के आने से थोड़ा लेजी हो गया है ना सेट। नहीं, लोग वार्म अप करते हैं। हाँ, वार्म अप करते हैं और मॉनिटर पे देख के इसको ये कर दे, उसको वो कर दे। जितनी इंडिया सिनेमा की ग्रेट फिल्में हैं वो विदाउट मॉनिटर बनी है। टॉक अबाउट मुगले आजम, या पाकीजा, मदर इंडिया, जी, और एनी फिल्म, कैमरामैन बोलता था ओके है। करेक्ट। आज तो एन एक्टर कम्स, उनका ऑन्टोराज ही इतना बड़ा है, टहलते जाते हैं वो कैमरा के सामने जैसे कोई बाग है ना। हमारा स्कूल वो रहा है, हमने उसी तरह से सीखा है। क्या करें यार, अभी हम हमारे अंदर वो घुस गया है, ब्लड में, चाहे भी तो नहीं निकलता वो। सही बात है। बट मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं उस टाइम पे काम करता था। कुछ लोगों को लगता है यार हम जल्दी पैदा हो गए, मुझे लगता है मैं और जल्दी पैदा होता तो अच्छा होता था। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में काम करना था। मगर मिथुन दा के साथ भी आपका बहुत स्पेशल रिश्ता था। अगर मुझे तुम कहोगे ना कि भाई हीरोज में तुम्हारा दोस्त कौन है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा मिथुन दा। मिठुन को मैं जानता हूँ पूजा, फिल्म लाइन में आने से पहले से। ही यूज्ड टू सिट विद अस इन खालसा कॉलेज। ही हैड कम फ्रॉम कैलकाटा। मैं तब से जानता हूँ, मैं आई थिंक 70s। और ये आदमी तब भी अपना, इसके पास
2 पेयर कपड़े होते थे, दोनों अपना क्रीम कलर के, बड़ा बेल बॉटम और शर्ट भी वैसा ही, एकदम टिप टॉप धुला हुआ, प्रेस किया हुआ, आयरन, कान पे बाल. मस्ट बी आई एम द ओनली एक्टर हु हैज शॉट विद हिम 3 शिफ्ट्स इन ऊटी. उसमें जो एनर्जी थी और जो एफर्ट लगा, उसको कैमरा समझ आता था. वो फाइनेस्ट एक्टर एंड फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग. मलेशिया में उसके रूम में 4 बजे तक मैं और वो बैठे हैं और हम दोनों बातें कर रहे हैं. सडनली बोला मेरे को बहुत भूख लगा यार. तो उसने फोन किया, उसने होटल में बोला कुछ मिल सकता है क्या खाने को. तो सर वी कैन गिव यू ओनली राइस. ओनली प्लेन राइस. हाँ, प्लेन राइस. उसने राइस मंगाया, राइस में उसने पानी डाला, ये पानी, उसने नमक डाला, उसमें नींबू निचोड़ा और वो उसने खाया मेरे साथ. और मेरे को बोला ये देख क्या हीरो है, ये खा रहे, देखा ये चावल खा रहा है, आई एम द विटनेस. तो यहाँ से आदमी का कैरेक्टर भी पता लगता है. वो ग्रेट आदमी, जिसको उसको अनदर, जिसको आप दोस्त बोल सकते हैं, एंड मोस्ट अंडररेटेड एक्टर. यस. इवन यहाँ पे वो आता था तो यहाँ भी रात को आ जाता, आ जा यार बैठते हैं. ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं है. मुखौटा पहनने वाले नहीं है, मास्क नहीं लगाते जी, कि बाहर मास्क लगा के निकले, अंदर से कुछ और ये हुआ. और इसीलिए लंबे रिलेशन चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते हैं. नहीं तो फिल्म टू फिल्म चेंज होते रहते हैं. हाँ, करेक्ट. हाँ, जो हमने देखा. और दिलीप साहब के साथ आपका बहुत कमाल का रिश्ता था. दिलीप साहब तो मतलब फादर फिगर थे. मैं उनको हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर मानता हूँ. हम जितने भी एक्टर हैं ना, सबके अंदर कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिलीप साहब आते हैं, कोई माने या ना माने. बिल्कुल. और मैं उनके साथ, मैंने पहली फिल्म मशाल की थी, छोटा सा रोल था. तो मुझे तो ये था कि दिलीप साहब के साथ खड़ा कर दोगे, क्राउड में खड़ा हो जाऊंगा. और मैं इतना बड़ा फैन तब भी था, अब भी हूँ और हमेशा रहूंगा. उनके साथ मैंने 3 फिल्में की और सेट पे मेरी ड्यूटी होती थी उनको अटेंड करो. प्रोड्यूसर भागता था. फिर मैं उनके घर जाने लगा, उनका बर्थडे होता था जाता था जी. उनकी एनिवर्सरी पे जाने लगा, ईद वाले दिन जाने लगा. अभी तक मैंने संभाल के रखा. 30-35 साल से उन्होंने मुझे एक शर्ट प्रेजेंट किया था, जो 30-35 साल से पहनता हूँ, एक आध बार साल में. 30-35 साल से पहन रहे, क्योंकि यू लुक द सेम. हाउ? खैर, आई विल नॉट बोस्ट दैट एवरी डे समबडी इज आस्किंग मी. और सर आपको देख देख के बड़े हुए हैं. मैंने कहा अगर नहीं दिखते तो बड़े नहीं होते ना, छोटे रह जाते. व्हाई यू हैव टू से दिस? मैं कौन सा एंशिएंट हूँ यार? सफेद दाढ़ी होगी, सफेद बाल होंगे, आपको देख देख के बड़े हुए. पूजा बहुत सिंपल है, खाना कम खाइए जी. आपकी जो बॉडी है ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, यही है सब कुछ. बिल्कुल सही बात है. आपकी एज रोज बढ़ रही है, यू कांट कंट्रोल द एज, बट क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, उतना आप देखो. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जहर खा के मरो, आप शुगर खा के भी मर सकते हो. बिल्कुल. तो जस्ट लर्न टू से नो. मुझे प्राण साहब ने एक बार कहा था, उनसे मैंने पूछा था आपने कैसे मेंटेन किया. इसे थंब एक्सरसाइज. आई सेड व्हाट? सर खाना आता है, मैं खाना डालता हूँ, बाद में बोलता हूँ ये उठा लो, ये उठा लो, और पुश इट विद द थंब. हाँ, बोलो जब मेरे खाना जो आपको चाहिए जितना वो आप ले लेते हो जी. जो व्हेन यू टेक सेकंड टाइम ना, ये एक लालच है, पेट भर चुका है, ये एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो और आप खा के फिर बैठ जाते हो या सो जाते हो. बिल्कुल. और एक चीज मैं और बोस्ट कर सकता हूँ कि मैंने कॉलेज में सॉफ्ट ड्रिंक पिया था, उसके बाद आज तक नहीं पिया. दैट इज अबाउट 50 ईयर्स. और मैं वेजिटेरियन हूँ फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स. अच्छा. हाँ. और मेरे बच्चे मुझे मजाक करते हैं कि मैरिज में भी जाते हैं तो आप येलो दाल और चावल खा के आते हैं. आई कैन ईट दैट येलो दाल एवरी डे, ट्वाइस ए डे. आई विल नेवर कंप्लेन. सुबह 1 घंटा वॉक करता हूँ. हाँ, अबाउट 5.5 किलोमीटर. ईट लेस, यू विल बी फिट, यू विल नॉट गेट टायर्ड. अरे आपको कब से देख रहे हैं, अब से देख, मैं क्या करूं यार, इट माय फॉल्ट, कब से देख रहे हैं. प्राण साहब के बारे में आपने बात की. ही वाज अ वेरी यूनिक, वेरी स्टाइलिश मैन. ही वाज डूइंग पिक्चर फॉर प्लस चैनल कॉल्ड लालची. राज सिप्पी वाज डायरेक्टिंग पूना में. तो उनको बोला हुआ था कि अंकल आप 10:30-11 आइए. ही विल कम एट 9:30 एंड ही विल पुट विग, मेकअप, एवरीथिंग एंड विल सिट. 9:30 मतलब 9:30 रेडी. हाँ. अंकल आप क्यों आ गए? तो बोले यार होटल में बैठ के क्या करता है यार,
इसका शॉट देखता हूँ, नेक्स्ट मेरा शॉट लोगे, मेरा रिएक्शन क्या होगा, उसने क्या बोला वो देखता हूँ. वाह. एंड एक भी शॉट मत लो टिल 6, ही विल नॉट कंप्लेन. एंड 6:30 हुआ ना, मैं चलता हूँ. तो मैंने एक दिन उनको पूछा, मैं बोला खान साहब आप देखो अवतार इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, मेरी से डेट ली है इन्होंने 9:30 to 6:30. आई हैव नो राइट टू कंप्लेन. करेक्ट. उसके बाद मुझे रोकेंगे तो मैं बोलूंगा. सही बात है. What I've learned is we get paid to wait, not to act. सो ये जो पीढ़ी थी ना, ये प्राण साहब हो गए, दिलीप साहब हो गए, आई बीन वेरी लकी इन लोगों के साथ काम किया, जी. सीखा मैंने. और मतलब मैं तो, लोग इसलिए भी मुझे सोचते हैं कि कितना इनिशिएट आया. वक्त विद राज साहब, राम तेरी गंगा मैली, और फिर अमित जी के साथ तो 12 फिल्में की मैंने. 12 फिल्में. अमित जी के बारे में भी ये कहा जाता था ना कि ही वॉज पंक्चुअल टू अ फॉल्ट. हमेशा वेरी डिसिप्लिन, और कोई ताम जाम गैंग साथ में नहीं होती. और जब तक आप कहोगे नहीं जी. तब तक सेट से नहीं जाएंगे. आपको बोलना पड़ेगा कि अभी आप वैन में जाइए. हाँ वो बैठे हुए हैं, शॉट के बीच में भी. हाँ वो बैठे हुए हैं, दूसरे का शॉट चले, ई सिटिंग, ऐसा बैठे रहे, पोकर फेस बैठे रहेंगे. अमित जी आपको 2-3 घंटे हैं, आप जाए, देन ही विल गो, अदरवाइज ही विल नॉट गो. एंड ही विल कम एग्जैक्टली ऑन टाइम. वी वर शूटिंग नेक्स्ट टू सिद्धि विनायक, तो रवि चोपड़ा सेट के कल सुबह 7 बजे की शिफ्ट है. मैं बोला अच्छा, तो बोला कितने बजे आ जाऊँ. कितने बजे आ जाऊँ मतलब 7 बजे की शिफ्ट है, 7 बजे आ जाना. तो मैं वहाँ पहुँचा 7 बजने में 10 मिनट पे, और गाड़ी पार्क करके ना, चाय पिला यार. तो वैनिटी में घुसने लगा. मैं बोला अमित जी, बोला वो 6:30 बजे आ गए थे, वेकअप करके कॉस्ट्यूम पहन के बैठे हैं. Oh my मैं बोला God. चाय कैंसल, कॉस्ट्यूम ला दो. एंड ही विल नेवर मेक यू फील दैट यू आर अ स्मॉलर एक्टर ऑन सेट. पहली बार मैंने सीन किया था शहनशाह के सेट पे. आई वाज प्लेइंग सीनियर ऑफिसर ऑफ टू अमित जी, एंड आई हैड टू फायर हिम. आप नर्वस थे. नो ना, एंड वो नर्वसनेस दूर करने के लिए आई वाज स्माइलिंग टू हाइड माय नर्वसनेस. एंड देन टीन से क्या मुस्कुराया जा रहा था. एंड वो एकदम ठंडा स्वेट होता है, जी. मैंने कभी ठंडा स्वेट नहीं, बर्फ जैसा ऐसा, लेग्स ऐसी. आई हैव टू फायर हिम. फिर वो हो गया, एंड ही वाज स्टैंडिंग टॉल नेक्स्ट टू मी, एंड लाइक एनीबॉडी आई सेड सर ठीक था. हाँ अच्छा था, थोड़ा शाउट की करने के बजाय थोड़ा डिग्निटी ले आइए. हाँ. तो इन लोगों के साथ एक्सपीरियंस जो है ना, अमित जी हुए, दिलीप साहब हुए, राज कपूर हुए, ऋषिकेश मुखर्जी, जी. आई वॉज हिज फेवरेट एक्टर. Really? या वन डे ही टोल्ड मी, he said बेटा तू बहुत लेट मिला. I said दादा मेरा हिम्मत नहीं होता था आपके पास आने को. मेरे बर्थडे को सुबह 6 बजे लैंडलाइन पे फोन आता था. ऋषि दा. हाँ बेटा हैप्पी बर्थडे, नींद से उठा दिया, बोलो कौन बोलता है. सर दादा. How sweet. एवरी ईयर यूज्ड टू लव मी. मैं रेगुलर उनके घर पे जाता था. सो आई बीन वेरी लकी. एक हमारे प्ले का डायलॉग है, परसों भी हम बोल रहे थे, बड़ा अच्छी लाइन है वो. कहता कभी किसी ने कहा था कि जिंदगी में अगर बड़े ना बन सको ना, तो कम से कम बड़े लोगों के साए में रहना. Ah, that's lovely. तो बहुत कुछ सीखते हो आप. Correct. और इन लोगों के सामने बोलना नहीं होता, सुनना होता है. लोगों को सुनने की आदत नहीं है. बिल्कुल. हर आदमी बोलना चाहता है. भाई बड़ी अच्छी बात वाइजबर्ट बोलते थे, तू सुनेगा तो जवाब देगा ना. आजकल लोग क्या बोलते हैं, मैं समझ गया व्हाट यू वांट टू से. Yeah. आई हैव नॉट सेड, यू समझ गए तुम. कमाल है ना. Yeah. आई हैव नॉट सेड एनीथिंग एंड यू गॉट इट. जी. समझ गया. तो लोग सुनते नहीं है आजकल. व्हाट्सएप के वन लाइनर बहुत कमाल होते थे. उनकी लाइनें होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी. इनकी लाइनों का मीनिंग समझने को कई साल लगे मुझे. इसमें से कि कुतुब मीनार के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने से हाइट नहीं बढ़ जाएगी. कितना दम है बात में. एक और लाइन है, उसको समझने को तो बहुत साल लगे. जी. जितनी समझ बढ़ेगी उतना अकेला हो जाएगा. सही बात है. मैं बोला क्या बोलता रहता है मुझे हमेशा यार. या. तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, हर आदमी के लिए जरूरी है.
हर एज में. जी. तो वन शुड नॉट से कि मुझे सब आ गया, मुझे No, no, पता लग गया. absolutely. यू कीप लर्निंग एंड यू कैन लर्न फ्रॉम ए किड ऑल्सो. Correct. तो वो मैंने जो ना आंखें खुली, कान खुले, मुंह बंद. ये बच्चों को भी बोलता हूँ, बेटा सुनो, हर जगह बोलना जरूरी नहीं है, और खास करके सीनियर्स के सामने तो बिल्कुल मत बोलना. उनको तुम क्या बताओगे? उनको सुनो, उनके एक्सपीरियंस है जो वो बताएंगे आपको. मगर आपने अभी इंडस्ट्री को तब से देखा है. यू वर्क विद ऑल दीज पीपल. स्टॉलवर्ड्स. आई आस्क्ड माय फादर दिस. आई सेड यू नो, एक जमाने में जबान का जो वैल्यू था ना, कॉन्ट्रैक्ट तो देखा ही नहीं था हमने. नहीं. और आप लोगों ने तो बिल्कुल नहीं देखा होगा. बिल्कुल. पिक्चर रिलीज के बाद बोलता था यार वो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर देना यार. These giants, and when you say giants, it's not about stardom. Giants as human beings. Yes, in all aspects. तो आज के दौर में क्या है? पूजा, बहुत खूबसूरत मैनिक्विन को कपड़ा पहना के आप लगा देते हो दुकान के बाहर, इतनी सुंदर दिखती है, सुंदर कपड़े पहना दिए, लेकिन वो बोलती नहीं है, चलती नहीं है. प्लास्टिक के. जी. लोग प्लास्टिक के हो गए हैं. फील नहीं है. कितना पैसा दे रहा है, कभी दे रहा है, अभी कितना लाया, मेरा लॉयर को मिल ले, मेरा ये टर्म निकाल दे, नहीं प्रमोशन के पैसे अलग लगेंगे, 40 दिन में कर ले, ऊपर लगेगा तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो कॉर्पोरेट ने आया, एक बहुत अच्छी बात हो गई कि डिसिप्लिन हो गया, लेकिन कॉर्पोरेट ने वो जो फीलिंग थी दोस्ती की, फैमिली की, वर्क रिस्पेक्ट की, आंखों की शर्म, वो खत्म हो गई. आंखों की शर्म. वो जो हम उठ के खड़े हो गए या सिगरेट फेंक दी या दारू का गिलास छुपा दिया, अब क्या है, वो बैठे बैठे बोले हेलो सर, दिस इज द मैक्सिमम. करेक्ट. तो आपको जो रिस्पेक्ट है, शर्म है, उसकी स्टारडम की नासी, उसकी उम्र की जरूरत. मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा ड्रेस मैन हो, मेकअप मैन हो, अगर वो एजेड आदमी है उसको दादा बोलने का, जी बोलने का. बोले मेरे को सब मिलते हैं, अरे आप अवतार जी की बेटी हैं. मैं बोला देखो तुम्हारे बाप को अवतार जी की बेटी बोलते हैं जी. बोले मैं सबको जी करके बोलती हूँ. जो आदमी तुमसे बड़ा है, तुम गलत भी है तो उसकी बात सुन लो, बाद में उसको बोलना दादा ऐसा नहीं है, ऐसा है. पलट के जवाब मत देना. अपनी पोजीशन मत दिखाओ उसको. क्या है, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंटेड बहुत है नए बच्चे. मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि हमने जो 1 साल में सीखा, ये 1 महीने में सीखते हैं जी. ये तैयार होके आते हैं. लेकिन ये जो बाकी की बातें हैं ना, जैसे हम थे कि भाई 4 एक्टर एक ही रूम में बैठे हुए हैं, सबके कॉस्ट्यूम यहाँ भेज दे, सबका लंच यहाँ भेज दे. अब हर आदमी अपनी अपनी वैन में बैठा हुआ है. अब वो सेट पे आ गए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, उसके बाद बाय बाय सर, दैट्स ऑल. क्या है यार. दूसरा एक मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप हिंदी फिल्म में काम कर रहे हो जी, 24 आवर्स आप इंग्लिश बोलते हो, आपको जबान नहीं आती है. रोमन्स में डायलॉग आते हैं. अभी मैं पंजाबी फिल्में करता हूँ काफी, तो वहां गया तो उन्होंने रोमन में लिख के भेज दिया. तो ऐसे कांट यू गिव मी डायलॉग्स इन गुरुमुखी, आप गुरुमुखी पढ़ ले. मैं बोला यस. अब तो सारी जिंदगी बम्बई में रहे हो. I said I read Gurmukhi. Wow. Punjabi. जी. Shocked. How can you read Gurmukhi? Through this journey, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त चले भी गए, गुजर गए. बहुत सारे. There's a vacuum in your heart, I'm sure. Satish Shah. जी बिल्कुल. I know him since my college, before coming to this film line. और हम थोड़े दिन पहले उनको मिल के आए सबके. मैं, अपना राकेश बेदी, रमेश तलवार, went to his house. He said कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, ऐसा लग रहा था हम बीमार हैं, वो अच्छा है. हंस रहा है. मैं बोला तुम पागल हो क्या? बोले हाँ यार देख मेरा पूरा घर बना दिया हॉस्पिटल. मैं बोला अभी क्या? अभी यार आई हैव टू ट्रांसप्लांट माय किडनी. यार तुम हंस रहे हो कोई? आई एम ओके, अभी देख लिया मैंने, अभी जाऊंगा कलकत्ता ट्रांसप्लांट करके आ जाऊंगा, फाइन बी फाइन. तो रमेश तलवार से एक फोटो ले लेते हैं. रमेश साहब क्या फोटो ले रहे हैं, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ. He said this. He said this. उफ. मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, क्या फोटो ले रहे हो? तो बिछड़े सभी बारी बारी. जैसे ऋषि कपूर का बड़ा अच्छा था, मुझे हमारी फोन पे बात होती थी, मिलते थे, बैठते. जेन्युइन आदमी, नो प्रिटेंशन, मास्क नहीं है. टू कॉल मी रात को 12 बजे. तो मेरी वाइफ ने उठाया, कोई इंग्लिश नाम बोल रहा है. बोलो कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग बोल रहा हूँ.
अबे साले तू अच्छा काम किया यार, अभी मैंने रंगीला देखी तेरी। अच्छा तो रंगीला ही कॉल्ड यू। 12 बजे 1 बजे तेरा नंबर नहीं था, शांति मलिक से लिया मैंने, इस सेक्रेटरी तो उससे। मैं बोला अच्छा यार थैंक यू यार, तू क्या समझ मैं चमचागिरी कर रहा हूँ तेरे? आई डिडंट सेड एनीथिंग यार, रात को 12 बजे तेरे को फोन कर रहा हूँ। अरे तू चेम्बूर वाला है, मेरा दोस्त है गिल बाबू, कॉल में गिल बाबू। सुबह शांति मलिक का कपूर साहब का फोन आया रात को, मैं बोले यार मुझे 2 बजे उठा दिया यार तेरा नंबर लेने के लिए, हर बार तेरी पिक्चर देखता है, हर बार नंबर लेता है। ऐसे मेरी बीवी बोलती कोई इंग्लिश नाम बोल रहा है, वो बोल रहा है स्टीवन स्पीलबर्ग बोल रहा है। दैट But how did Rangila happen and what was that experience Ram Gopal Verma के साथ काम वेरी करके? गुड, Yeah? वेरी गुड। आई डिड रंगीला, आई डिड जंगल, जी। and I did one Telugu picture I was mentioning outside. He was making a film called Nayak, Sanju and Nasir. तो मेरा टिकट आ गया, I went to Hyderabad. 9 o'clock, he's saying, I am sending you my car, you come to my house, we'll drink and we'll have dinner here only. 4 रुपया खाना खाया। अफ्तार जी, I booked your ticket tomorrow morning, you go. I am not shooting. I have dropped that picture. फिर I said, what? I am planning one comedy picture. Can you do comedy? I said, well, I have done theatre. On film line, one picture. I said, don't make on film line. The greatest picture made was by Guru Dutt, Kagaz Ke Phool. हाँ चलिए It was नहीं। disaster. जी। Now it is a cult film, cult करेक्ट, अभी classic. क्लासिक है। हाँ। He said, don't make it. हमारे जो jokes होते हैं, only industry people knows. I have a character, there is a producer's character I want you to play, Hindi producer. I said, okay. And Jackie is the hero, and Urmila is a junior artist and becomes a heroine. And her lover is a Amir Khan, who is a small town boy. I said, okay. Then he'll come to me. I will have scene. I don't have a scene, I will explain you. You write it in Hindi, or you say your line. तो मैं जो लाइनें एक्चुअल सुनता था जी। कि अरे यार वो राजू का सीआई से फोन आया डिस्ट्रीब्यूटर का, वो बोलता है अभी थोड़ा इनिशियली ठंडी है बट 2-3 दिन के बाद पब्लिक पकड़ लेगी तो पिक्चर हिट हो जाएगी। और पंजाब में अब तो आर्मी को बुलाना पड़ेगा पिक्चर उतारने को, नहीं तो पिक्चर उतरे। These are all dialogues are there in the picture. Okay. और बाकी मम्मी से बात होगी, मम्मी बोलती है बेबी का डेट्स मिल जाएगा। उस टाइम पे मम्मी और बेबी को चाइनीज चाहिए। हाँ, तो उसमें है तो शम्मी आंटी उसकी मदर तो बोले दो मंगाइए, तो बोले 2 लेके आ, तो 2 पंखा लाइए, 2 चेयर लाइए। ये सब डायलॉग मैंने लिखे। और विग पहनता है ये आदमी, मैंने ही प्लान किया था। वो विग कभी इधर पहनता है, कभी इधर पहनता है, कभी इधर पहनता है, कभी इधर, कुछ भी है। और एक सीन में तंग आ जाता है जब वो बोलता है हीरोइन पिक्चर छोड़ रही है, शेफाली शाह थी 2 सीन में, वो पिक्चर छोड़ रही है बिकॉज शी फेल इन लव विद हिज ड्राइवर। तो ड्राइवर के साथ कैसे? बोलो 3-3 शिफ्ट करती है, तीनों ट्रिप में साथ में रहता है। तो ही रिमूव्स दैट, throws it down. गुरुदत्त साहब के बारे में आप बात कर रहे थे कि कागज के फूल वाज अ डिजास्टर एंड कल्ट क्लासिक हो गई है। हमने जो साथ में सीन की थी डैडी में, where you're talking about your father's portrait on the wall. Do you think we are a culture where we only give the rightful due to people when they die and they become that picture on the wall, कि जब भी जिंदा लोगों को आप प्यार देते नहीं हो और फिर the person passes away फिर आप वाह करते हो, तारीफ ही करते हैं। Then he becomes great. वो हमारा एक हिपोक्रेसी कहो, कल्चर कहो, जो भी है, that's what we do. We wait for them to die. Awards also we give them after they die. तो क्या करोगे, है ऐसा। वो कुछ हमारे कल्चर में प्रॉब्लम है या हम लोगों में प्रॉब्लम है कि आपको ग्रेट सुनना है तो आपको मरना पड़ेगा। नहीं तो मैं इम्प्रेस नहीं होता। आप मर जाओ, मैं ओवरनाइट इम्प्रेस हो जाऊंगा। बड़ा एक्टर, बड़ा मैन यार। फिर वो जितने एडजेक्टिव्स है सारे लगा दीजिए उनके साथ, लेकिन जब तक वो जिंदा है कौन है वो पता ही नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना, मुझे इस जर्नी में महेश भट्ट के साथ सीखने को मिली है। रियलिटी क्या है, फिल्म लाइन क्या है, कैसे तुम अपने गलत फहमी में मत जाओ। मैं बताऊं, मेरी बीवी मेरी पिक्चर आ रही है तो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे घर में कोई नहीं देखता है,
मैं भी नहीं देखता, मैं तो खैर टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि पहले बुरा काम करो और फिर बेशर्म की तरह बैठ के देखो. आई कांट टॉलरेट माई सेल्फ. Oh my God. समझा ना, शेमलेसली. वो मुझे उस दिन स्माइल देती है जिस दिन उसके हाथ में पैसे रखता हूँ. हाँ, रियलिटी. correct. भैया रोज ही कमाओ. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कह लो, वी आर इन दिस लाइन. Yes. अदरवाइज हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हर आदमी जो मेहनत कर रहा है फैमिली के लिए, अपने लिए, हम भी वही कर रहे हैं. बिल्कुल. बट हम लोग लकी कह लो कि हम लोग फैल जाते हैं कि हमने कुछ कमाल कर रहे हैं, जी. इस मुल्क पे एहसान कर रहे हैं या कुछ कल्चर पे एहसान कर रहे हैं. ऐसा कुछ है नहीं है, पर ये समझ में आ जाना चाहिए. हाँ. कुछ लोगों को नहीं आता है, मरते दम तक नहीं आता. बट सबकी लाइनें मैं तो आज बोलूंगा, तुम सामने बैठी हो, कि इनसे ना सक्सेस हैंडल होती है ना फेलियर हैंडल होती है. Success is even more difficult for them to handle. बट आइदर वे दे गो मैड. आई हैव नेवर फेल्ट दैट आई हैव अराइव्ड. नेवर. आई हैव बीन ऑलवेज. आई आल्सो रैन. I also ran. बस. जैसे आपने कहा था, बहुत फनी किस्सा कि एक बार आप एडिटिंग खत्म करके निकल रहे थे भट्ट साहब के साथ में, 2 बज गए थे. That was very funny. तो रात को 2 बजे एडिटिंग करके निकले हैं. बाहर निकले एडिटिंग से. तारी सीरियसली अब क्या करें यार, काम तो खत्म हो गया. अरे 2 बजे खत्म हो गया, मतलब सारा दिन अपने घर जाओ. तो मैं बोला एक काम करते हैं, किसी का एडिटिंग रूम खोल के उसकी पिक्चर जाके चोरी चोरी एडिट करते हैं. तो ही स्टार्टेड लाफिंग. बहुत जोर से हंसा. हाँ ठीक है ठीक है, चल चल तू मुझे घर छोड़ दे, चल घर छोड़ दे. वाह. But this is what your friendship is. I think नहीं, यही तो बात है. और उन दिनों बहुत प्यारा हो जाता था, दारू पीता था ना. तो you've seen the 2 sides of Mahesh Bhatt. अब तो वो आई विल से ही हैज बिकम माइल्ड हो गया, फकीर हो गया. फितरत पहले भी फकीराना जी, थी, जी, 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 जी. वो चेंज नहीं हुई है, लेकिन अभी टोटली फकीर हो गया. मतलब अभी वो नहीं है. Correct. अब वो ठीक है यार, अच्छा यार. अब वो एक आप मैच्योरिटी बोलो या कुछ है, चेंज कुछ नहीं हुआ. अब भी उसकी पूंछ पे पाँव रखेगा तो काटेगा वो, और उतने ही और से ऐसे ही करेगा वो. वो बोलते हैं कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, छलांग लगाना नहीं बोलता वो. That is true. हाँ. I think the fire burns even brighter today. तो वो पहले जो था ना, एक दारू वाला दौर था, जी. तो बहुत प्यार व्यार ये वो, और 4-4 शूटिंगें एक दिन में सही बात है, डायरेक्टर की, उन्होंने किया है यार. और फिर 4 शूटिंग करके फिर वहीं सो गए हैं, और फिर वहीं सुबह उठे हैं. और वो दौर मुझे याद है. लास्ट शिफ्ट थी रात को हमारी, आवारगी की गाना था, तो गोविंदा आया रात को 1:15 बजे. For a 9 o'clock shift. 7 o'clock शिफ्ट. 7 बजे की. Oh my तो God. आके वो सॉरी बोला, और सब बोले कोई बात नहीं. आपको डायरेक्टर को सीखना चाहिए. वो कभी भी एक्टर को डांटता नहीं था. बोले अगर मैं इसको डांट दूंगा ना किसी एक्टर को, इट विल शो ऑन हिज फेस ऑन द स्क्रीन. Correct. अगर एक्टर को डांटना है, पैकअप के बाद डांटना, नहीं तो नहीं है. ये चीजें सीखने वाली होती है डायरेक्टर को. वो उस मामले में वो एक्टर को बहुत हैंडल करते थे. मैं कभी कभी बोलता था, मैं क्या यार ये शॉट लगाओ ना थोड़ा. अरे यार क्रेन लगा दे यार, ये जाहिल आदमी टेकिंग से खुश होता है यार. Yeah. जबकि उन्होंने टेकिंग पहली दूसरी तीसरी सब फिल्मों में करके देख लिया था. Correct. वो के विस्किड आ गया, विस्किड आ जी, गया. बिल्कुल, बिल्कुल. वो सब मंजिलें और भी है, लहू के 2 रंग, ये बिल्कुल. कैमरा घूम रहा है, ये कहाँ. तो सेकंड रील में आदमी बोलता कहानी किधर है. Correct. कहानी तो है नहीं. फिर वो बोलता था एक्टर अच्छा ना, कट की जरूरत नहीं. कट की जरूरत तब है अगर एक्टर वीक है. तो एक्टरों के लिए तो ट्रीट. और ये कि डायरेक्टर के मैं सेट पे देखता था, स्ट्रगलर आके बैठ जाते थे, नहीं तो आदमी मिल के जाए. सुबह 6 बजे तक बैठे हुए सब. और कोई 21-22 असिस्टेंट होते थे, नॉट बिकॉज ही नीडेड द हेल्प, नहीं, बिकॉज दे वुड कम फॉर वर्क एंड वो ना बोलता ही नहीं था. काम मांगने वाले बैठे रहते थे. चाय पी रहे, खाना खा रहे. तो उन्होंने कहा कि तारी आपके अंदर अभी बिटरनेस, कड़वाहट बहुत ज्यादा आ गई है. कितनी कमाल की बात है. That made a difference, huge difference to your psyche. Yes, if I see your work, I will call you and I will praise you, and I will praise genuinely. जी, That I बिल्कुल. learned from Not correct. second person was Rishikesh Mukherjee. He will call some Marathi actors after seeing serials. जी. सर बेटा मैं आज उसको फोन किया, तो मैं बोला मैं ऋषिदा बोलता है. बोला कौन ऋषिदा? ऋषिकेश मुखर्जी. बोले सुबह सुबह टांग मत खींचो, फोन रखा नीचे. वो मेरे को डांट दिया बेटा. और वो तारीफ करने के लिए. हाँ, फोन तारीफ कर रहा है. करने के लिए. ये जो ट्रेट है हाँ.
के appreciate करो. Do you think that's a forgotten art? Not forgotten, nobody knows it कि ये भी होता है. I, me, myself. That's all. Self obsessed. और आपको लगता है कि कोई इनविजिबल कैमरा आपको फॉलो कर रहा है हमेशा. आप कभी नेचुरल होते ही नहीं है. जी. कमाल का सेंटेंस बोला. अपने आप से नजर हटा के दूसरे को देखना सीखो. बिल्कुल. दूसरों की तारीफ करो. बिल्कुल. ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये मैंने इकट्ठी की. ये मैंने इकट्ठी की उनसे इतने सालों में, 38 सालों में. रोज कुछ ना कुछ मिल जाता था. आजा तेरी बैटरी चार्ज करता हूँ. तो मैंने कुछ लोगों की बैटरी मैंने चार्ज करनी शुरू कर दी थी. क्या यार, क्या रोता रहता है यार. क्योंकि आप रोने से का कुछ होने वाला नहीं है. आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी. What is a basic tip you'll give them? To somebody sitting in Punjab right now, या कोई बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा हो. It is very tough, very, very difficult. Don't take it easy. And give yourself a time, 6 months, 1 year, 2 years. Don't waste your entire life. You must be made for other things, not for this. How can I go back to my village, to my city? What will people say? कुछ नहीं. भाई नहीं हो पाया. I tried, नहीं कर पाया. अब वो पहले की ऐसा कि मैं तो फुटपाथ पे सोऊंगा भूखा और वो पुराने स्ट्रगल वाली हाँ, कहानी. वो नहीं है. जी. वो एक धर्मेंद्र होता है. जी. जी बिल्कुल. वो ऐसा नहीं है कि 10 धर्मेंद्र घूम रहे हैं. नहीं नहीं, सही बात है. मगर आपके अंदर ये बात कहाँ से आती है कि आप दूर से लोगों को पहचान लेते हैं? क्या पूजा, इतने साल हो गए, 46 ईयर्स ये हो गए जी. तो एज इतनी हो गई है. आपको रोज सीखते हैं. आपको सीखते हैं लेफ्ट. आप खाली आंखें खुली रखिए, कान खोले रखिए, हाँ, मुंह बंद रखिए. मगर एज के बारे में आप बात करते हैं तो ये कहावत है ना कि लोग बूढ़े होते हैं, बड़े नहीं होते हैं. ये भी सही है. तो फिर मैं कहूँगा मैं कि भाई हमको साथ ऐसा मिला, लकी रहे हम लोगों के साथ. जैसे मैंने कहा कि अगर बड़े ना बन सको तो बड़ों के साए में रहो. नहीं नहीं, आप और बड़े का मतलब सिर्फ जिसके पास पैसा है, रुपया है, वो नहीं है. बिल्कुल. जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि बड़ा आदमी कौन है. अभी मैंने आपसे कहा कि मुझे पूजा कुछ पैसे चाहिए, तो आपने कहा कि भाई मेरे पास 100 रुपये है, 50 तुम रख लो, 50 मैं रख लेती हूँ. अब यहाँ पे हमारा ये कुणाल बैठा हुआ है. उसने कहा यार मेरे पास 10 रुपये हैं, तुम 10 रुपये ले लो. जी. तो मेरी नज़र में वो बड़ा है आपसे. करेक्ट. उसके पास जो थे उसने दे दिए, तो मैं उसको बड़ा मानता हूँ. जी. तो ये वो है कि भाई आपकी सोच बड़ी हो और सोच के हिसाब से आप काम बड़े करते हैं. पैसों से नहीं है, पैसा तो बहुत लोगों के पास है. तो कोई बात आप में होनी चाहिए और वो बात होती है तो नज़र आती है. कभी कभी देर हो जाती है लेकिन वो आती, कभी कभी देर हो जाती है. हाँ. और बाकी तो देखने वाला चाहिए, पहचानने वाला. आपकी लोग कहते हैं आपकी नज़र में वो बात थी तो आपने देख लिया. हाँ. The gaze has to be new. बिल्कुल. जौहरी जो हीरे को तराशता है. तो ये सारी बातें हैं. बाकी तो खुदा मेहरबान, तो गधा पहलवान वो तो है ही है. लेकिन अगर आप लगे रहोगे जी. तो ये भी मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई अगर आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए, विराट कोहली नहीं बन पाए, तो आप कम से कम हार्दिक पांड्या तो बन जाएंगे या वीरेंद्र सहवाग बन जाएंगे. आप लगे रहिए. नहीं, but I love what you said. I also ran. Yes. And you are still running. वो एक कमिटमेंट ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर है आपके अंदर. मैं रोज रोता था, रोज, एवरी डे. यार कुछ नहीं हो रहा है. तारी मेरे पास लोग आके बोलते हैं हमको अवतार गिल बना दो. पता है तुझे कितने लोग तेरे ऐसा बनना चाहते हैं. तो मैं बोलता हूँ मैंने नहीं बनाया, उसमें कुछ था वो बन गया. मैंने नहीं बनाया. बोला डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, देयर इज ऑलवेज समबडी बेटर देन यू. दैट इज ट्रू. You compare yourself from where you started, where you have reached. That is the growth. Yeah, that is the growth. That is the success. जी. मेरी पिछली 20 जनरेशन में कोई फिल्म लाइन नहीं आया. मुझे तो ये भी नहीं पता था कहाँ जाना है, किसको मिलना है, क्या बोलना है. ये एक ही मैडनेस थी, मुझे कैमरे के सामने आना है. Where did it come from? I don't know यार. I can't answer you. So Raman casted me first time in play. And then I met Bhatt Saab. He always says paid me for Janam.
paid me 80 rupees for walk. 80 rupees? Yes, he says that. He said, मेरी पिक्चर का बजट 7 लाख है. हाँ, 7 लाख, that's a हाँ. fact. 7 लाख 50,000 ले रहा है कुमार गौरव. जी. 25,000 दिया है अनुपम खेर को. मुझे नहीं पता इसमें मुझे पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा. तुम्हारा कितने पैसे लगे? तो आई सेड 40 रुपए ऑटो आने का, 40 जाने का. मैं तो 4 बस चेंज करके गया था 10 रुपए में. आई चेंज 4 buses. 9:30 शिफ्ट, आई लेफ्ट 7 o'clock to change 4 buses. तो ही सेड हरीश, उनका असिस्टेंट था, भोसले, 80 रुपए दे दो इनको. Then again I changed 4 buses and I saved 70 rupees. Genius. And he remembers. He says उस टाइम पे जो पौधा लगाया था वो बढ़ के झाड़ हो गया. Then he gave me 500 per day. Then 750, 1,000, 1,500, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000. And it went up. Then one day he said, तुम अपने पैसे की बात कर लो, तुमको करना है करो, नहीं करना मत करो. बट साहब की 2-3 फिल्में जो नहीं की मैंने, वो मैंने नहीं की. और मैंने बड़ी से बड़ी फिल्म की है. मैंने 10 हीरो वाली फिल्म भी की है. तो फिल्म कोई भी हो, क्योंकि वो बजट या तो डायरेक्टर ले गया, या हीरो ले गया, या हीरोइन ले ली. हमारे हिस्से में छुट्टे पैसे चेंज. ऑटो रिक्शा वाले की तरह 9 रुपए 12 आने, 10 रुपए 50 पैसे. तो वो आते, वो भी उसमें भी 2-2 पैसे, कि अभी 2 पैसे अभी ले लो, 2 पैसे तुम्हारे बेटे की शादी में, 2 पैसे जब तुम ग्रैंडफादर बन जाओ तब देंगे. वो सब करके भी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं. ये सोचो, मतलब हम कितने ढीठ हैं, कितने बेशरम हैं कि हम नहीं जाएंगे. हम नहीं जाएंगे. हम नहीं जाएंगे. तुम जो मर्जी कर लो, हम नहीं जाएंगे. हम तो यही मरेंगे. मैं तुमको पूछना चाहता हूँ कि तुम में जो क्वालिटीज में देखता हूँ या हैबिट्स देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये तो मैं महेश भट्ट से बात कर रहा हूँ. तुम्हारी बात करने का अंदाज, तुम्हारे सवाल पूछने का अंदाज, तुम्हारी लाइफ का अंदाज जीने का, मैं जब भी देखता हूँ और अक्सर बात निकलती तुम्हारी, तो तुमको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 5 मिनट में आदमी को पता लग सकता है ये महेश भट्ट की बेटी. तो वो कहाँ से तुम्हारे पास, मेरा तो सबको, सारी दुनिया को पता मेरे पास कहाँ से आया. मैं तो बोलता हूँ और मैं बोलता रहूंगा. तुम में मैं देखता हूँ एक यंग छोटा महेश भट्ट. और मैंने वो तुम्हारे भी दौर देखे हुए हैं जो उसने उसमें देखे थे जी. और फिर उसमें चेंज देखा, फिर तुम में चेंज देखा. The same thing he would say in front of everybody ना. मगर बात आपके दिल तक पहुंचती थी. It is you who is able to understand that. एक खिड़की से दो लोग बाहर देखेंगे, व्यू तो दोनों को अलग दिखता है. Courage is not hereditary. What I value the most about my father and hence you, कि मजदूर इंसान है आप लोग, मजदूर हैं. और मैं वैसे ही हूं. अब कोई भी काम मेरे लिए छोटा नहीं होता है. बट येस, आई नो माई वैल्यू, और मुझे अच्छे लोगों के साथ रहना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये पता है, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू. आप डांटते भी थे मुझे व्हेन आई वाज रॉन्ग, एंड आई वैल्यू दैट. मेरे लिए तुम मेरी भी बेटी हो. बेटी हो तुम महेश भट्ट की बेटी नहीं हो. तुम मेरी बेटी हो, मेरे दोस्त की बेटी हो, मेरी बेटी हो. हमको ये हमारे पुरखों ने सिखाया हुआ है. ये रिश्ते ही तो हैं यार, जो बांधे हुए हैं. रिश्तों ने तो बांधा हुआ है. बिल्कुल. वरना तो हर आदमी अपना कमा रहा है, खा रहा है. देखो शुरुआत नाना भाई भट्ट से के साथ काम किया, देखो तुमने को पता ही नहीं होगा. तुम सोचो मैं कितना एंशिएंट हूँ. मैं ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का हूँ. नहीं, but in my head you're not ancient or anything. क्योंकि जब से मैं आपको जानती हूँ, आप physically you look the same. आपका spirit वैसा ही है. You're an amazing man, and I just want to say thank you so much for being such a wonderful friend to my father. I am very privileged that I have got a friend like him, and you have been always kind towards me. महेश भट्ट की बेटी है तो बहुत सारी बातें तुम में वही है, और मैं तुम में महेश भट्ट देखता हूँ, और वो मुझे अवतार गिल को देखता है, उसका कुछ हिस्सा तुम भी देखती हो. तो ये अल्टीमेटली क्रेडिट गोज टू देखने वालों. मैं अगर अच्छा हूँ तो इसलिए अच्छा हूँ कि तुम बोल रही हो, वो बोल रहे हैं. अगर तुम नहीं बोलो तो मैं नहीं हूँ. If all the world is a Mahesh Bhatt film and we are all Avatar Gills in it, I would say that if you can be Avatar Gill in that world, then you have reached somewhere. I just hope मेरे अंदर भी ये fire जिंदगी भर जले के get up
and go to work. Yes, yes. Everything is sacred. Yes. कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई भी रोल बड़ा या छोटा नहीं होता है. Go there, give your all, don't take yourself seriously, and tomorrow's another day. Right? Absolutely. That is the very well summed up. That is what Avatar Gill. That is what Avatar Gill is. The Yeah. man who just shows up, the man who just says that I'm आज का ready. काम क्या है भाई? हाँ, आज I'm का ready. काम क्या है? And I'm fit to work. That is most important. Mentally, physically, both. Yeah. So thank you so much. My pleasure, Pooja. I'm grateful to you. You thought about me. You called me. I thought about you before I started this podcast. मैंने आपको बहुत पहले बोला Yes, था yes. कोई पूजा भट्ट अगर पॉडकास्ट करेगी और उसपे अगर अवतार गिल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? भट्ट साहब ने अच्छी बात बोली. बोले वो टीआरपी वाले लोगों से नहीं मिल रही है. उसको टीआरपी वाले लोग नहीं चाहिए. उसको जो दिल की बात बोले, खुल के बोले, सीधा बोले. जैसे मेरे साथ बातें करता है वैसे ही बातें करता है. Absolutely. मैंने कहा वैसे ही करूंगा. Absolutely. मुझे दूसरी तरह से आती भी नहीं है करने. How can I change now यार? No, you're not supposed to change. जो है सो है. यही है. जो है कमाल है. जीती रहो, खुश रहो. Thank you. Keep kicking. And keep walking. Yes. The Pooja Bhatt Show is produced by Mammoth Media Asia and Epilogue Entertainment and distributed by iHeart Podcasts. The executive producer is Jonathan Strickland.